I'm Anchal Agrawal. I'm a comedian, and I have a problem that I cannot have a conversation without making jokes. सो मेरी लाइफ का हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि लाइफ में कुछ भी चलते रहे, परेशानी चले, कोई बहुत ही बड़ी त्रासदी हो जाए, भसड़ हो, घमासान हो, चुटकुले चलते रहने चाहिए. सो जब मैं छोटी थी, हम लोग घर में बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया इन्होंने कि मैं मिडिल क्लास घर से आती हूँ, बट एक्चुअली मैं शायद थोड़ा लोअर मिडिल क्लास घर से ही थी जब मैं छोटी थी. तो और आप सभी जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के पेरेंट्स हैं, तो उस समय लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत थी. दे वर फ्रॉम अ ग्रोथ जनरेशन, सो दे वांटेड us to be better. I was very studious. मुझे पढ़ाई में और खेल कूद में आगे बढ़ाया गया था, तो लाइफ बहुत बड़ी स्ट्रिक्ट थी. और वो स्ट्रिक्ट लाइफ को थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए मैं और मेरा भाई बहुत चुटकुले मारते थे एक दूसरे पे. हम लोग बहुत मजाक मस्ती करते थे, और वही इवेंचुअली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बन गया. I am a 34-year-old woman now. I'm also single, so we make jokes about that also, because you have to make jokes about problematic things in your life. But so when I look back on my life with this lens, I realize that I am not a comedian because I'm funny. I am a comedian because I always looked at life from a very light lens. I always looked at life from the lens of how can I make this fun for me? How can I make this problem fun for me? And growing up in Indore, आप लोग भी सब लोग भोपाल में ही हैं अगर तो when we were growing up, I was born in the 90s and I was growing up, so इतना exposure था नहीं. We just knew two things कि आपको या तो engineer बनना है या doctor बनना है या बहू बनना है. So मैं वो तीनों ही चीज़ नहीं बन पाई थी. तो कुछ तो बनना ही था, एंड कुछ एक्सपोजर नहीं था. इंटरनेट भी काफ़ी देर से हमें मिला था, काफ़ी डायल अप कनेक्शन वगैरह पे हम चलाते थे. तो बहुत बहुत ही दूर दूर तक ये कोई मेरे पास मौका नहीं था कि मैं कॉमेडियन बन जाऊँ. मुझे पता भी नहीं था कि कॉमेडी कुछ होता है. जब मैं जॉब करने बॉम्बे गई थी, तब मुझे वहाँ पता चला कि कॉमेडी इज समथिंग. हाउ आई गॉट टू नो, हाउ आई रीच्ड हियर, हाउ आई बिकेम अ कॉमेडियन, how I'm able to perform around the world, how a lot of people around the world, millions of people are actually watching my videos, are coming to my shows by buying tickets, are actually being admirers of me and sharing my work with others. I think I reached here because I always thought in every situation, how can I make this fun? And I always said yes to things. Any opportunity that came my way, I just said yes to it. Because I thought, कि okay, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? It will go like really bad. It will end up in like a bigger problem for me. But will that be fun? And I always thought that it will be fun. And it has always been fun for me. I'll give you a small story of how I became a comedian. So when I moved to Mumbai, mere college, I was in DAVV Indore, and I was placed in a campus placement drive. I was the first person to get placed actually. And I was not a good student in college. I was a very bad student. I used to not attend classes. I used to just do time pass in college parking and all. So my college HOD actually had a bet that I will never get a job and I'll never be anything in life. Interestingly, I was the first person to get placed, so it was fun. But when I went to Mumbai for that job, I realized that I did not want to do that job, and I figured there are multiple other things that I can probably explore in life. Like I can explore acting, I can explore writing, I can explore comedy. And when I wanted to do all these things, I had no idea what to do. Right? I have no one in my family who has lived outside of Indore, let alone working in somewhere in like entertainment industry. So I did the very smart thing, or the obvious thing that someone would do. I downloaded Tinder. Okay, Tinder is a dating app for the elderly people who don't know about it and who have lived a good, easy life finding partners. Tinder is a dating app where you find people to date and to eventually marry. I downloaded Tinder and I swiped people on Tinder to see कि कोई comedian मिल जाए इसमें, so that I can talk to him and I figure out how to actually become a comedian. So I actually ended up matching with a comedian, and then in conversation I told him that I also want to become a comedian. I want to try comedy. And he told me, okay, then you should probably go to an open mic and do perform. Write some jokes, go to an open mic. And you know how we see life as हाँ हम लोग कल कर लेंगे. Because you're doing something and you don't want to you just think to have a dream is to just have a dream in your head. When you actually realize that and when you actually take a step towards that dream, it becomes your reality, and that is very scary. So I also thought that. I was like, oh, if I actually go and perform, then
either be good at it and I will have to work hard to actually be at it, or I will be bad at it and that will shatter my, opinion and my thoughts about myself. So I was like, yeah, I'll go. Maybe next month I'll go. And then he said something that really pinched me. He said, हाँ फिर तो next month you will go only. So I was like, अरे ये कल का आया टिंडर का लड़का मुझे कैसे ताना मार रहा है? So I said, okay, I'll go. And I went the very next day. I went and I performed at an open mic, and it was a disaster. It was really bad. I did not do well. People were laughing, but I just wanted to finish my jokes. I had some 4 minutes of jokes, and I just wanted to tell all of them. Like if someone was laughing, I actually told them, "रुक जाओ, पहले मुझे jokes सुनाने दो, फिर बाद में हंसना." So, but that day I realized that I will need to work hard. But this is something that, like, it's fun. I can maybe figure out time in that. And since then, I have been a comedian. It was back in 2017, and now we are in 2025. We are almost in 2026. It's been almost 10 years I have been doing comedy. I have been writing comedy. I've been acting. I have been creating a lot of videos, as you guys have seen. And all of it now, when I look back at my life, so many shitty things have happened. I have just realized that, all of that I've been doing only because in every problem, I thought, how can I have fun? How can I make it fun? I'll give you an example. I recently shared on my Twitter also about laughing at funerals. So, Indian society and our society, specifically in the Hindi belt, we are very serious about things like death. We are very serious about things like marriage. We are very serious about things like, our elders and people who are older to us. And we want to pay our respects to them. We want to be respectful to them. And then we expect a certain kind of conduct from young people. But in my family, like, we have always kind of celebrated funerals. When someone passes away, you meet, आप सारे लोग मिलते हो, and usually, किसी भी तरह के और किसी भी तरह के अवसर तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, बट किसी भी तरह का ऐसा कोई मौका नहीं होता जिसपे सारे घर वालों का मिलना हो जाता है. शादी में भी आपका कोई कजिन छूट जाता है, या कोई बुआ रह जाती है, या कोई फूफा नाराज हो जाते हैं. बट जब कोई गुजर जाता है तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं. एंड आई थिंक वो हमारे कल्चर की वो ब्यूटी है कि जब हम मिलते हैं एक दूसरे को किसी चीज़ का साथ देने में, तो सारी बिटर स्वीट मेमोरीज निकल कर आ जाती है. यू थिंक अबाउट देम, राइट? आपका कोई अपना चला गया है अगर, तो आप उनके बारे में बात करते हो कि अरे हम फलाने के साथ आगरा गए थे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी. हम लोग जब खाना खाने जाया करते थे तो ये हमेशा नाराज़ हो जाते थे कि चावल ठंडे रहते थे. इस तरह की कई कई बातों पे आप लोग बॉन्ड करते हो, एंड वो फिर बिटर स्वीट मेमोरीज लेके आती है, तो उससे आपकी हंसी निकल जाती है, उससे आपकी लाफ्टर निकल जाती है. व्हेन इन peak COVID lockdown, my uncle passed away. I was very close to him. He was like my grandfather to me. And when he passed away, हमारे पास तो actually इतनी सारे उस समय resources भी नहीं थे, क्योंकि lockdown चल रहा था, तो कैसे तैसे घर वालों को इकट्ठा करके हमें funeral करना था. And उस funeral के दौरान जब उनका जो आखिरी रिचुअल्स थे, जब हम वो करके घर वापस लौटे, तो हम लोग फोटोज ढूंढ रहे थे फोटो एल्बम में कि उनकी कौन सी अच्छी फोटो है जिसको हम बनवा सकते हैं उनके प्रेयर मीटिंग के लिए और उनके फंक्शन के लिए. और वो फोटो ढूंढते ढूंढते हम सारे परिवार के बच्चों ने करीब 20 फोटो एल्बम्स देखी कि अंकल की कौन सी फोटो अच्छी. और वो 20 फोटो एल्बम्स में जो हमने इतनी 100, 200, 300 इतनी सारी उनकी फोटोज देखी, तो सारी मेमोरीज बाहर आते गई. और वो सारी मेमोरीज में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती की. हम लोगों ने बहुत याद दिलाया कि अरे ये भी तो करते थे, ये भी तो करते थे. एंड उस मोमेंट में हम भूल गए कि वो दुख हमारे लिए कितना बड़ा था. कि मेरे भाई जो थे उनके पिताजी चले गए थे, मेरे अंकल चले गए थे, मेरे पापा के बड़े भाई चले गए थे. सबका कोई ना कोई बड़ा दुख था, और वो सब हम भूल चुके थे उस मोमेंट में. हम सिर्फ ये याद कर रहे थे कि उनने जो जिंदगी जी है वो कितनी बड़ी है, और उन्होंने जो लाइट हम सबके लिए छोड़ी है, जो वो लेगेसी हम सबके लिए छोड़ के गए हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कितनी बड़ी है. सो एवरी टाइम लाइक समथिंग लाइक दिस हैपेंस, आई ऑलवेज बिलीव एंड आई ऑलवेज फील लाइक कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं, अगर हम उस परेशानी को अपनी जिंदगी का सेंटर बना लेते हैं, तो वो उस परेशानी की जितनी हैसियत है हम उसको उससे बड़ा बना देते हैं. जब हम उस परेशानी के बाहर खड़े होकर जब उसको देखते हैं, उसके बारे में जोक्स करते हैं, उसके बारे में हंसते हैं, तो हमें एहसास होता है कि अरे यार तो बहुत ही छोटी सी चीज है. एंड व्हेन यू लुक बैक यू थिंक दैट कि अरे मैं किस चीज के लिए रो रही थी, अभी तो मेरी जिंदगी में और बड़ी अड़चन आना बाकी है. सो एवरी टाइम आई डोंट नो, यहाँ पे सारे ज्यादातर लड़के लोग हैं, ये शायद रिलेट नहीं करेंगे इस बात से, बट जो लड़कियां अगर वो रिलेट कर सकती है, तो हमेशा जब भी लाइक किसी लड़की का ब्रेकअप होता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है कि अरे शिट ब्रेकअप हो गया. बट अब जब मेरा ब्रेकअप होता है तो मैं सोचती हूँ अरे अभी तो इससे और बड़ा होना बाकी है. ये तो बहुत ही छोटी सी बात है. सो आई ऑलवेज थॉट दैट लाइक कॉमेडी एंड जैसे हमारे भोपाल में इंदौर में ठिलवाई बोलते हैं.
इंदौर में ओटलेबाजी भी बोलते हैं कि आप जो है घर के बाहर आपके ओटले होते हैं उसके ऊपर बैठ के आप मस्ती मजाक करते रहते हो लोगों से। पहले हमें लगता था कि अरे कितना समय बर्बाद करते हैं ये अंकल लोग, इनको और कोई काम नहीं है क्या, रात को चने लेके बैठ जाते हैं ओटले में। अब मुझे एहसास होता है जब मैं व्हेन आई लुक बैक कि वही चीज जो है वो उनको सेन रख रही है। देयर इज अ रीजन आई एम इन थेरेपी एंड दे आर नॉट, क्योंकि वो अपने चने लेके बैठ जाते हैं और वो अपनी परेशानियों पे की हंसी मजाक उड़ाते हैं। आपकी मम्मी जो आपकी मौसी के साथ फोन पर बात करती है, वो एक तरह से अपनी परेशानियों पे हंसना है, वो अपने परेशानियों को अपने सिस्टम से निकाल देना है। और चलो किसी का गुजर जाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, ब्रेकअप हो जाना भी किसी किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। हम जैसे लोग जो बार बार उससे गुजरते हैं उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। बट बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे जॉब, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ जो जो रेगुलर लोगों की हमारी परेशानी होती है ना, जो मिडिल क्लास लोगों की, जो इतना हैमर करके गई है कि मैं मिडिल क्लास हूँ, जो उन लोगों की इतनी परेशानी होती है। क्या होती है, नौकरी नहीं लग रही, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, या लड़की अच्छी मिल गई है पर उससे जम नहीं रहा है, या माँ बाप खुश नहीं है, सेहतमंद नहीं है, ये सारा कुछ नहीं है। पर हम लोग इन सब पे जब जोक करते हैं ना तो वो बातें बहुत छोटी छोटी लगने लगती है। विच इज़ वाई आई थिंक अब पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि इंडिया में जो कॉमेडी का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। हर तरह की कॉमेडी हो रही है, ठीक है। कोई इंसान कॉमेडी कर रहा है शादी के बारे में, कोई इंसान कॉमेडी कर रहा है माँ बाप के बारे में। मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। आप में से किसी ने जिसने भी मेरा कंटेंट देखा होगा उन्होंने शायद नोटिस किया होगा कि मेरा मेरा जो पूरा लिटरेचर ही है, जो भी मैं लिखती हूँ, जो भी मेरी भावना है, जो रस बोलते हैं कि आपके कला में कौन सा रस है, मुझे नहीं पता माँ बाप का कौन सा रस होता है, पर मेरा सिर्फ वही है। एवरीथिंग अबाउट मी इज प्राइमरली अबाउट माई पेरेंट्स, एंड दैट इज बिकॉज मैं जो अपनी कॉमेडी का हुनर, मेरे अंदर जो कॉमेडी का हुनर है, जो मैं मेरे अंदर जो ऑब्जर्वेशन का हुनर है वो मेरी मम्मी पापा से आया है। मेरे मम्मी पापा दोनों अपने सिबलिंग्स में, अपने भाई बहनों में सबसे छोटे सिबलिंग्स हैं। मैं अपने सारे भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ, मेरे काफ़ी सारे फर्स्ट कजिन्स हैं, उन सब में मैं सबसे छोटी हूँ। तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि घर का सबसे छोटा बच्चा सबसे लाडला होता है, बट वो ही सबसे छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा पिटता भी है, उसको ही सबसे ज़्यादा मार पड़ती है, वो ही सबका नौकर भी होता है, और उसको ही कुछ अपनी मर्जी से करने को नहीं मिलता। तो वी ग्रोइंग अप वी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक वी लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली अर्लियर, एंड माय मदर डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ एजेंसी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। when I was a child, when I was an infant, I used to fall sick a lot, क्योंकि मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट थी। जिनको दूध नहीं पचता है वो लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं। आई वॉज वन ऑफ देम, एंड मैं इतना ज़्यादा हाई लेवल का लैक्टोस इंटॉलरेंट थी कि मुझे ब्रेस्ट फीड भी नहीं किया गया है। तो आप लोगों ने सुना होगा ना, कभी कोई बोलता है कि अरे माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैंने पिया ही नहीं है, ठीक है। सो आई वॉज नॉट ब्रेस्ट फेड ऑल्सो, बट माई मॉम वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल पीपल इन द फैमिली, एंड उनको दूसरों की सुननी पड़ती थी। तो घर वाले जो होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं ना आपको कि अरे डॉक्टर को कुछ नहीं पता, वो तो ऐसे ही बोलने के लिए बोल देते हैं, दूध तो बच्चों को पिलाना ही पड़ता है। तो मेरी मम्मी बेचारी थोड़ा थोड़ा किसी से डर के पिला देती थी, थोड़ा चाय टाइप बना के पिला देती थी कि अरे चाय पिला सकते हैं, दूध नहीं पिला सकते। सो एज अ इन्फेंट मैंने चाय भी पी हुई है। तो द पॉइंट ऑफ दिस वॉज कि घर के छोटे लोगों को इतनी अथॉरिटी नहीं होती घर में, कि माई मॉम वॉज लाइक सो फार ऑफ फ्रॉम हैविंग एनी एजेंसी और एनी अथॉरिटी in the family that she couldn't say no to people about something which was actually actively harming me. वो सारी जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में भी मैंने बचपन से ही जोक करना सीखा। मैंने सीखा अपनी मम्मी से कि वो इन सब चीज़ों से कैसे उभरती है, जोक करके, चुटकुले मार के। मेरी मम्मी हर चीज़ में जोक मारती है। आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी मम्मी को देखा होगा किसी ने, हाँ। वो मेरी मम्मी एक्चुअली में असल में वैसी ही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं स्क्रिप्ट करके उनसे सब बनवाती हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं करती। इट्स माई मॉम एंड शी सेज थिंग्स लाइक दैट। जैसे मुझे जब लड़का ढूंढने निकलना था, मैं निकली हुई हूँ पिछले 15 साल से, तो जब 15 साल पहले मुझे लड़का ढूंढने निकलना था, तो उसके 2-3 साल बाद आई हैड अ बॉयफ्रेंड बैक देन, एंड देन आई ब्रोक अप विद हिम। सो मैंने मम्मी से बोला कि अब दोबारा लड़का देखने निकलना पड़ेगा, और उस बात पे मेरी मम्मी ने बोला था अब कुछ नहीं बचा, छन गई चाय, पीने वाले पी गए। आप इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये बात किसी की माँ ने कही है? किसी का ब्रेकअप हो गया, मेरी मम्मी कह रही है कि हाँ, मर्द जात को नहीं सुहाती दुर्लभ चीज की सुलभ प्राप्ति। ये सब मेरी मम्मी कहती है ये सारी बातें। तो हमने बचपन से ही वो सीखा है कि आप किसी बड़ी परेशानी को ह्यूमर से देखोगे तो वो छोटी लगने लगती है, ठीक है। अभी बहुत सारे मुझे लड़कियां बहुत सारी मैसेज करती है इंस्टाग्राम पे कि आंचल आप यू आर अबव 30 एंड यू आर सिंगल एंड यू आर हैप्पी। आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी इन लाइफ। आई एम वेरी
content in life, and I feel that this is a privilege to actually stand among all of you who are such accomplished people. आप सबकी नेटवर्थ मुझसे कम से कम 20x वगैरह होगी. आपने इतना कुछ अचीव किया है लाइफ में. आप छोटे शहर में रह के भी आपने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की है, और आप मेरी बात सुन रहे हो, मुझे नहीं पता है ये सब क्यों हो रहा है. सो कुछ तो मेरे एंसेस्टर्स के पुण्य रहे होंगे, कुछ मेरा काम रहा होगा, बट all this is happening because my mom took a risk. A lot of people tell me that, you know, you are so brave, but I'm actually not brave. My parents were brave, and they thought कि ठीक है, बच्चों को बाहर भेज देते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, और कुछ नहीं तो थोड़ी मौज मस्ती हो जाएगी. तो वो चीज़ जो है वो मुझे मेरे पेरेंट्स से आई है, एंड आई थिंक वो चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स को दी भी है. सो दिस आई रियली लाइक टू शेयर विद women. Whenever I see a woman, I like to share this with them कि a lot of women message me on Instagram कि you are above 30s and you are not married, तो how you inspire us, how do you do this? तो I first to tell them कि मैं तो शादी कर लूँगी, ठीक है, मुझे तो लड़का नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं को इंस्पायर करने के लिए शादी नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. बट द सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू बिकम फ्रेंड्स विथ योर पेरेंट्स. You have to bring them on a journey that you are on, and you have to share your life with them. If you don't do it, they will never know it. They will never know what kind of challenges you are doing. They will never know what capabilities you have. अगर हम अपने पेरेंट्स से सारी बातें छुपाते ही रहेंगे तो वो तो ऐसे ही समझेंगे ना कि हम वही 15-16 साल के बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं था जिंदगी के बारे में. So how I have done it is I have made my parents a part of my life. So every mistake that I made with regards to my dating life, with regards to my career तो मेरे पापा मम्मी को मेरा इतना समझ नहीं आता है. वो अभी भी मेरे पापा यही पूछते हैं कि वीडियो देखने के लोग तुम्हें पैसे क्यों दे रहे हैं. सो मेरे साथ कोई फोटो खिंचाने आ जाता है तो मेरे पापा अभी भी मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या उखाड़ दिया तुमने जो इस बंदे ने तुम्हारे साथ फोटो खिंचाई है. उनको आज तक समझ में नहीं आती है वो बातें. बट इन टर्म्स ऑफ माई पर्सनल लाइफ आई ब्रॉट देम ऑन दिस जर्नी, एंड इट इज एक्चुअली प्रिटी फनी when you bring your parents to this journey and you tell them कि अरे I am going on a date with someone, and then you have to explain to them कि this is just a date, इससे मेरी कल शादी नहीं हो जाएगी. It's actually pretty funny. So my point is ki, like, you know, when you actually see problems, when you step outside of this red dot and when you see your problems, it becomes, like, you know, pretty much solvable, right? Because nothing in life is truly unsolvable. Other than death, there is nothing that you cannot, like, you know, bring back. Anything you can bring back. If you have resigned, you can always go to a better company. If you have broken up with someone, you can always find a better person. If you are living in a particular city, you want to move away, you can always come back. I went to New York. I went to live in New York to study at New York University. I did that, and then I came back because I wanted to be here, but I also wanted to get that experience. If you want to take one thing away from whatever I have said, nothing in life is truly that big a challenge, and whatever challenge you are facing in life, you are actually bigger than that. Thank you.